Hello friends, myself Vinay Mishra, working as a faculty in the Department of Mechanical Engineering from the college affiliated with AKTU. Today we are going to have a discussion basically on the subject, that is thermodynamics, the subject of BTech third semester from AKTU syllabus. In my previous lecture I have discussed about the concept of entropy, second law, first law of thermodynamics, about the basic of refrigeration, and today we are going to have a discussion basically on the refrigeration processes, how we are going to achieve refrigeration process by using various cycles. Regarding that, I am going to have a discussion regarding that. So, continuing my lecture. So, this is basically the way by which the heat engine, refrigerator and heat pump is being represented. Heat engine, as we know, that it is a device which is used to create certain amount of work done in the form of rotation, in the form of work done by when the certain amount of heat is being given to the system itself, where Q1 is the amount of heat added to the system, Q2 is the amount of heat rejected, and WE is the amount of work done produced by the engine itself. Refrigerator, when we talk about the refrigerator, it is the device which is used to create refrigeration effect, or we can say the kind of cooling effect. It is a device which is used to create the cooling effect in the required space. Now, as per the Clausius, as per the second law of thermodynamics, basically we are having the certain amount of heat absorbed from the system which required for the cooling process, that must be equal to Q1. So, Q1 is the amount of heat extracted from the space which is required for the cooling process. We are having the temperature, this is say T1 and this is say T2. So, T2 is the temperature of the reservoir we are considering it, from which the certain amount of heat must be extracted, so that the cooling effect will be created. So, in order to extract certain amount of work, in order to extract certain amount of heat, in order to create certain amount of cooling effect, we need to we need to do certain amount of work done on the system itself, that must be equal to WR, and when this is going to be happen, then definitely the kind of heat rejection must be there, that must be equal to Q2. So, Q2 is the amount of heat rejected to the surrounding, Q1 is the amount of heat extracted, and W is the amount of work done on the system for the possibility of this process. So, this is the way by which the refrigerator is being represented. अगर हम लोग heat pump की बात करें, then heat pump is a device in which basically the desired effect is heating effect. अगर हम लोग रेफ्रिजरेटर की बात करें तो बेसिकली दोनों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भी दोनों में देखने में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन प्रोसेस में अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि रेफ्रिजरेटर इज द डिवाइस इन विच cooling effect is the desired effect, or heat pump is the device in which the heating effect is the desired effect. अब यहाँ पर हम लोग कूलिंग इफेक्ट को लेके चलते हैं और यहाँ पर हम लोग बेसिकली हीटिंग इफेक्ट को लेके चलते हैं. सेम Q1 is the amount of heat extracted, Q2 is the amount of heat rejected, and WP is the amount of work done on the system itself. When WP state that it is a work done for heat pump, and WR is the amount of work done that is done on the system in case of refrigerator. When we talk about the coefficient of performance, see basically we are having two things, the first one is a refrigerator and the second one is a heat pump. COP is basically the mathematical expression which is used to find out the performance of refrigerator as well as heat pump. So, the performance of refrigeration or heat pump, refrigerator or heat pump is expressed by the term known as coefficient of performance. That means, coefficient of performance says that in how much amount the performance is there for the refrigerator as well as for the heat engine itself, or as well as for the heat pump. In terms of mathematical expression, COP, C stand for coefficient of performance.
This is refrigerator basically, in which the certain amount of heat is being extracted from the system required for the cooling itself, that must be equal to Q1, and if Q2 is the amount of heat rejected for this refrigerator and W is the amount of work done, then temperature, if temperature is less than the temperature T2, T2 is the temperature of surrounding and T1 is the temperature of the space required for the cooling itself. So, COP for this refrigerator can be calculated as the desired effect to the work input. That means, COP is basically the expression which is used for calculating the performance of refrigerator as well as heat pump, that must be equal to the ratio of desired effect to the work input. In case of refrigerator, basically the desired effect is cooling effect or refrigeration effect. So, COP of this R suffix, R means refrigerator, that must be equal to cooling effect divided by work input. Cooling effect can also be written as refrigeration effect divided by work input. Here the cooling effect or refrigeration effect, that must be equal to Q1 and the amount of work done on the system, that must be equal to W, or we can also write this expression in terms of Q1 and Q2. See, from the energy balance equation, Q1 plus W is equal to Q2, that means heat extracted, work input, addition, that must be equal to the amount of heat rejected, that must be equal to amount of Q2, or we can say that work done is equal to Q2 minus Q1, or in this way we can find out the expression for the COP for refrigeration or refrigerator. This must be equal to the amount of refrigeration effect, the amount of heat extracted, जो amount of heat extract किया है cooling effect में, इस temperature से heat का extraction हुआ है, वर्क डन किया है, हीट का रिजेक्शन हुआ है, हीट का रिजेक्शन Q2 के बराबर है और यहाँ पे जो वर्क इनपुट दिया है दैट मस्ट बी इक्वल टू W, और तो हीट जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है और जो कूलिंग इफेक्ट है या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट उसको हम कहें, दैट मस्ट बी इक्वल टू Q1. सो the COP of refrigerator, that must be equal to the desired effect, and the desired effect is the cooling effect, that must be equal to the refrigeration effect, which is equal to the amount of heat extracted, which is Q1 divided by work input. So, we can simply write the expression in terms of Q1 and Q2 like this: Q1 refrigeration effect and Q2 minus Q1, which is coming from this equation Q2 minus Q1. So, this is finally the expression of COP for refrigerator in terms of heat extracted and heat rejected. Now, if we are talking about the value of COP in terms of temperature, ठीक है, उस केस में हम लोग क्या कहेंगे, COP अगर टेम्परेचर के फॉर्म में लिखनी है तो हम लोग बात करेंगे COP मैक्सिमम COP के बारे में. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द रिवर्स द COP करस्पॉन्डिंग टू रिवर्स कार्नोट साइकिल. उस केस में COP की वैल्यू जो होगी यहाँ पे लोअर टेम्परेचर डिवाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस. COP that must be equal to T1 divided by T2 minus T1, T1 divided by T2 minus T1. ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया है, इसके बारे में डिस्कशन हम लोग डिटेल में करेंगे जब हम लोग रिवर्स कार्नोट साइकिल के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो अगर COP इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर की हम लोग बात करें जो कि कार्नोट साइकिल से आएगी हमारी, और यही जो COP है हमारी, ये हमारी मैक्सिमम COP कहलाती है. किसी भी रेफ्रिजरेटर के लिए एक्सप्रेशन जो हम लोग यूज़ करेंगे T1 अपॉन T2 माइनस T1 होगा, लोअर टेम्परेचर अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस. ये जो वैल्यू होगी COP की उस करस्पॉन्डिंग रेफ्रिजरेटर के लिए मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी
उस रेफ्रिजरेटर के जो परफॉर्मेंस होगी, जो मैक्सिमम COP के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो उस केस में जो मैक्सिमम COP होगी दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस कार्नोट साइकिल COP। और अगर हम लोग इस COP की बात करें तो ये जो अमाउंट ऑफ COP है दिस इज बेसिकली अवर एक्चुअल COP। अगर रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल के बारे में बात करें, अगर रिवर्सिबल डिवाइस के बारे में बात करें जिसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में इससे पहले वाले लेक्चर में किया है, तो हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों जो एफिशिएंसी हैं ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी T1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1। कब? जब हम लोग बात करेंगे रिवर्सिबल डिवाइस के बारे में। अगर हम लोग ये कहें कि ये जो रेफ्रिजरेटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये रिवर्सिबल है, तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि जो COP इसकी आएगी, जो मैक्सिमम COP होगी इसकी एक्चुअल COP के बराबर हो जाएगी। दैट मीन्स T1 अपॉन T2 माइनस T1 दैट मस्ट बी इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 minus Q1, that means the maximum COP of this refrigerator that must be equal to the actual COP of this refrigerator। सेम प्रोसेस हम लोग हीट पंप के लिए यूज़ करेंगे और हीट पंप के लिए भी COP इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होगा, जो COP अगर हीट पंप के लिए बात करेंगे हम लोग, वहाँ पर डिज़ायर्ड इफेक्ट हमारा हीटिंग इफेक्ट होगा। रेफ्रिजरेटर की बात हम लोग करें तो वहाँ पर डिज़ायर्ड इफेक्ट हमारा कूलिंग इफेक्ट है, और हीट पंप के लिए अगर हम लोग बात करेंगे इन दैट केस द डिज़ायर्ड इफेक्ट इज हीटिंग इफेक्ट। तो वहाँ पे एक्सप्रेशन कैसे आ जाएगा हमारा, COP ऑफ हीट पंप दैट मस्ट बी इक्वल टू द हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ हीट Q2 दैट मस्ट बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे कहेंगे जो COP आएगी हीट पंप के लिए वो आएगी Q2 अपॉन वर्क डन। यानी अगर रेफ्रिजरेटर के लिए बात करेंगे तो वहाँ पर जो COP है रेफ्रिजरेटर के केस में वो हीट एक्सट्रैक्टेड आएगा, हीट एक्सट्रैक्टेड अपॉन वर्क डन। और यहाँ पर हीट पंप के केस में जो अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्शन होगा वो हमारा डिज़ायर्ड इफेक्ट होगा, और एक्सप्रेशन हमारा आएगा Q2 अपॉन W के फॉर्म में, यानी Q2 अपॉन W। Q2 अपॉन W, W फिर से हम यहाँ से लिख देंगे Q2 माइनस Q1। तो जो एक्सप्रेशन है हमारा बेसिकली Q2 डिवाइड बाय Q2 माइनस Q1 के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। सेम जैसे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ मैक्सिमम COP के लिए लिखा था कि अगर मैक्सिमम COP निकालना है रेफ्रिजरेटर के केस में तो वहाँ पर टेम्परेचर के टर्म्स में अगर लिखना है तो वो T1 अपॉन T2 माइनस T1 होगा, और अगर हीट पंप के केस में हम लोग लिखेंगे तो इस केस में जो COP होगी हमारी हीट पंप के लिए मैक्सिमम COP की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर उसकी वैल्यू होगी T2 अपॉन T2 माइनस T1, दैट मीन्स हायर टेम्परेचर अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस। ये वैल्यू आती कहाँ से है, इसकी जो एक्सप्रेशन है टेम्परेचर के फॉर्म में आता कहाँ से है, ये हम लोग जब रिवर्स कार्नोट साइकिल के बारे में डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस जो एक्सप्रेशन है टेम्परेचर के टर्म में कैसे आया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर COP रेफ्रिजरेटर की निकालें, मैक्सिमम COP की अगर हम लोग बात करें तो उस केस में जो COP आएगी रेफ्रिजरेटर के केस में T1 अपॉन T2 माइनस T1 आएगी, और अगर हीट पंप के लिए हम लोग बात करें तो उस केस में जो COP आएगी हीट पंप के लिए वो हमारी Q2 अपॉन Q1। या अगर मैक्सिमम अगर उसकी बात करें COP की बात करें तो मैक्सिमम COP की अगर बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर यहाँ पे T2 अपॉन T2 माइनस T1 आ जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें कि इस रिवर्सिबल डिवाइस है, अगर रिवर्सिबल डिवाइस है तो उस केस में क्या होगा, इसकी एक्चुअल COP जो होगी, ये जो टर्म हम लोग यूज़ कर रहे हैं दिस इज बेसिकली एक्चुअल COP, और ये जो टर्म हम लोग यूज़ कर रहे हैं दिस इज बेसिकली मैक्सिमम COP। जाहिर सी बात है जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया था रिवर्सिबल इंजन के रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर के केस में जो मैक्सिमम COP थी एक्चुअल COP के बराबर कर दिया था, सेम प्रोसेस जो मैक्सिमम COP होगी यहाँ पे इसकी वैल्यू इसकी एक्चुअल COP के बराबर हो जाएगी। अगर हम लोग पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें कि ये कब ऐसा पॉसिबल होगा, कब किस केस में इसकी एफिशिएंसी कम होगी ज़्यादा होगी, इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि अगर किसी भी रेफ्रिजरेटर या हीट पंप की COP एक्चुअल COP उसकी मैक्सिमम COP से ज़्यादा है तो वो कंडीशन इम्पॉसिबल होती है, चाहे रेफ्रिजरेटर हो चाहे हमारा हीट पंप हो। यानी किसी भी केस में एक्चुअल COP की जो वैल्यू है उसकी मैक्सिमम COP से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर बराबर होगी तो उस केस में हम लोग कहेंगे रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल तक हो सकती है, लेकिन अगर एक्चुअल COP की वैल्यू अगर मैक्सिमम COP से ज़्यादा हो रही है तो वो कंडीशन पॉसिबल हमारी नहीं होगी, और अगर कम है तो हम लोग कहेंगे दिस इज
द डिवाइस इज इरिवर्सिबल या रियल वो डिवाइस है। यानी अगर इसकी वैल्यू इसके टेम्परेचर के फॉर्म में जो लिखी हुई COP की वैल्यू से अगर कम है तो उस केस में हम लोग ये कहेंगे कि द डिवाइस इज इरिवर्सिबल या रियल डिवाइस है हमारी। अगर हम लोग बात करें रिलेटिव COP की तो हम लोग देखेंगे दिस इज बेसिकली द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल COP एंड थ्योरेटिकल COP, where actual COP is equal to refrigeration effect by W. Rn is basically the refrigeration effect divided by W. रेफ्रिजरेशन अगर COP के बारे में बात करेंगे तो डिजायर्ड इफेक्ट हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो जाएगा, अगर रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करेंगे तो डिजायर्ड इफेक्ट हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो जाएगा, और अगर हीट पंप के लिए हम लोग बात करेंगे तो डिजायर्ड इफेक्ट हमारा बेसिकली वो हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर रिलेटिव COP अगर हमें निकालना है तो उसके लिए एक्चुअल COP की वैल्यू पता होनी चाहिए और थ्योरेटिकल COP की वैल्यू पता होनी चाहिए। थ्योरेटिकल COP का बेसिकली यहाँ पर हम लोग बात करेंगे थ्योरेटिकल COP की, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ COP। इन जनरल हम लोग बात करें तो टेम्परेचर के टर्म्स में जो हम लोग COP निकालते हैं रिवर्स कार्नोट साइकिल के बेस्ड में, वो हमारी जो मैक्सिमम पॉसिबल COP होती है, चाहे रेफ्रिजरेटर के केस में हो चाहे हीट पंप के केस में हो, तो वहाँ पर जो COP वहाँ से निकल के आएगी हमारी मैक्सिमम COP की जो निकल के आएगी, तो उस केस में हम लोग कहेंगे दिस इज द अमाउंट ऑफ थ्योरेटिकल COP। अगर उसको डिवाइड करें उसके एक्चुअल COP से, एक्चुअल COP को डिवाइड कर दें उसकी मैक्सिमम COP से, तो हमारी रिलेटिव COP की वैल्यू आ जाएगी। एक्चुअल COP की अगर हम लोग बात करें तो हमारी जो हीट के टर्म्स में जो COP निकली थी हमारी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यानी हीट के टर्म्स में जो निकला था, लॉसेस के साथ हम लोग कंसिडर कर रहे थे, उस केस में अगर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे जो एक्चुअल COP की वैल्यू होगी वो हमारी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट के फॉर्म में निकलेगा, और थ्योरेटिकल COP की जो वैल्यू है वो हमारी बेसिकली टेम्परेचर के फॉर्म में हम लोग निकालेंगे। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन बेसिकली हम लोग देखें तो जो रेफ्रिजरेशन की यूनिट है वो इन जनरल टन के फॉर्म में निकाला जाता है। अगर हम लोग अगर AC की हम लोग बात करें, कंडीशन की बात करें, तो हम लोग ये कहेंगे कि कैपेसिटी के अगर उसको हम लोग देखें तो बेसिकली उसकी कैपेसिटी जो होगी वो टन के फॉर्म में हम लोग बात करेंगे। हम लोग कहेंगे 1 टन का AC है, 2 टन का AC है, तो बेसिकली जो टन होता है ये बेसिकली क्या है, ये एक रेफ्रिजरेशन की यूनिट है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग पता करेंगे कि ये बेसिकली टन ऑफ रेफ्रिजरेशन किसके बराबर होता है और कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। The rating of refrigeration machine is obtained by the refrigerating effect. See, अगर हम लोग बात करें unit of refrigeration, so it is basically the rating of refrigeration machine, यानी किसी भी refrigeration machine की rating होती है जो हमें मिलता है refrigeration effect से। हमको पता है कि refrigerator के केस में हम लोग बात करें तो amount of heat extracted that must be equal to that is known as the refrigeration effect or cooling effect। यानी किसी भी स्पेस से हम लोग जितनी अमाउंट ऑफ हीट निकालेंगे वही हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा, वही हमारा कूलिंग इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन है ये बेसिकली जो अमाउंट ऑफ हीट हम लोग निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन देखते हैं। अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड इन द गिवन टाइम फॉर अ बॉडी, यानी कि यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन बेसिकली क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड in a given time of a body. The rating of refrigeration machine is given by the unit of refrigeration known as standard commercial ton of refrigeration, which is defined as the refrigerating effect produced by the melting of 1 ton of ice from and at 0 degree centigrade in 24 hours. क्या मतलब है इसका? अगर 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि जैसे अगर आपको कोई आइस गिवन है तो जाहिर सी बात है ये आइस मेल्ट कब होगी, जब सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट हम इसको देंगे या ये एब्जॉर्ब करेगा। दैट मीन्स द फ्यूजन विल टेक प्लेस। द फ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच द सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म। यहाँ पर अगर आइस की बात करें तो अगर फ्यूजन की बात करेंगे या अगर हम लोग कहें कि इसका कन्वर्जन होगा सॉलिड से, आइस से वाटर की तरफ, तो यहाँ पर सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट का एब्जॉर्प्शन होगा। कौन एब्जॉर्ब करेगा? ये आइस जब एब्जॉर्ब करेगी तो उसका कन्वर्जन होगा आइस से वाटर की तरफ, ठीक है। अब 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को हम लोगों को देखना है, तो बेसिकली 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है क्या?
1 टन ऑफ आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 24 आवर्स में मेल्ट होने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है दैट इज इक्वल टू 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन. दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट produced by the melting of 1 ton of ice. 1 ton means 1000 kilogram. Melting of 1000 kilogram of ice at 0 degree centigrade in 24 hours. यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर वाटर में अगर ये बदल रहा है तो आइस से वाटर में कन्वर्ट होने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट ये एब्जॉर्ब करेगा कौन, आइस, वो हमारा 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होगा, सब्जेक्टेड टू द कंडीशन इफ द मास ऑफ आइस इज 1 टन, दैट मीन्स 1000 किलोग्राम, एंड टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन 24 आवर. यानी 24 घंटे में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1000 किलोग्राम आइस जब मेल्ट होगी तो जितने अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब करेगी वो हमारा होगा 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन. दैट मस्ट बी इक्वल टू 1 TR. इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली 1 TR में. TR इज बेसिकली टन ऑफ रेफ्रिजरेशन. टन इज डिफरेंट, TR इज डिफरेंट. टन के लिए अगर हम लोग बात करें दैट मस्ट बी इक्वल टू 1000 किलोग्राम. If we are talking about the TR, that means we are talking about the ton of refrigeration, that means refrigeration effect, which is produced by the melting of ice, by the melting of 1000 kilogram of ice at 0 degree centigrade in 24 hours. तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं कि तो 1 ton of refrigeration किसके बराबर होता है वो अभी हम लोग इसमें देखेंगे. तो यहाँ पर हो क्या रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमको पता है बेसिकली कितना होता है 336 किलो जूल पर केजी. अब लेटेंट हीट के बारे में डिस्कशन हम लोग काफ़ी डिटेल में इससे पहले किया है कि लेटेंट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. दैट मीन्स द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर दैट मस्ट बी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. अगर वेपोराइजेशन हो रहा है तो वेपोराइजेशन हम लोग कहेंगे, अगर फ्यूजन हो रहा है, अगर फेज चेंज फ्यूजन के केस में हो रहा है तो वहाँ पर हम लोग कहेंगे द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. यहाँ पर क्या हो रहा है, आइस कन्वर्ट हो रहा है, आइस का फेज चेंज हो रहा है वाटर में एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. द आइस इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज कन्वर्टेड इनटू water at 0 degree centigrade. That means the kind of phase transformation take place at constant temperature. That means the kind of phase transformation take place from ice to water at 0 degree centigrade, and the amount of heat extracted for this ice, the amount of heat absorbed for this ice, the amount of refrigeration effect produced by this melting of ice, उस केस हम लोग कहेंगे कि जो हीट होगी, जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन जो हीट होती है वो उसको हम कहते हैं बेसिकली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसकी वैल्यू होती है 336 किलो जूल पर केजी. पर 1 किलोग्राम के लिए अगर 1 किलोग्राम की आइस है तो उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वर्ट होने के लिए वाटर में इतने अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत हमें होती है. ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है. तो एज पर द डेफिनेशन टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पर अगर हमें टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो बेसिकली वो लेटेंट हीट के टर्म्स में उसको लेकर के चल के हम लोग निकालेंगे. कैसे निकालेंगे, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन दिस मस्ट बी इक्वल टू 1 किलोग्राम ऑफ हीट के लिए 1 किलोग्राम ऑफ आइस को 1 किलोग्राम आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, 336. 1000 किलोग्राम आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस से वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हमें अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी, मल्टीप्लाई बाय 1000 इन 24 आवर. पर आवर के केस में निकालेंगे तो 24 आवर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, तो हमारा जो बेसिक इक्वेशन जो होगी हमारी 336 इंटू 1000 डिवाइड बाई 24, जो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी लगभग वो 14,000 किलो जूल पर आवर की आएगी. यही हमारा 1 TR है. 1 TR मीन्स 14,000 किलो जूल पर आवर. यानी 1000 अगर 1 टन की AC की हम लोग बात करें
तो वो 1 टन का एसी उतना ही रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, उतना ही कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जितना कि 1000 किलोग्राम आइस प्रोड्यूस करेगी मेल्टिंग होने में 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 24 घंटे के लिए। यानी 24 घंटे के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस जब मेल्ट होगी, वाटर में कन्वर्ट होगा, तो जितने अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब करेगी, वो अगर उसका मास अगर 1000 किलोग्राम है तो वो आपका 1 टन रेफ्रिजरेशन होगा। अगर 2 टन का एसी है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आइस है वो 2000 किलोग्राम की है, और जब मेल्ट होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होकर के क्या बनेगा, वाटर बनेगी, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और वो अमाउंट ऑफ हीट जो होगी हमारा 2 TR होगी। कब? जब हमारा मास 2000 किलोग्राम हम लोग लेके चलें। तो इस तरीके से बेसिकली टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को हम लोग लेकर के चलते हैं। अगर इस टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को चेंज कर दें, आवर को चेंज कर दें मिनट में, मिनट को हम लोग सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर आवर को चेंज कर दें मिनट में, तो हम लोग को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर अगेन उसको सेकंड में निकालना चाहेंगे तो हम लोग को फिर से 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कहीं कहीं पे अप्रॉक्सीमेशन में वैल्यू हम लोग 210 किलो जूल पर मिनट लेके चलते हैं, 210 किलो जूल पर मिनट भी लेके चलते हैं 1 TR की वैल्यू, और कहीं कहीं पे 3.5 किलो जूल पर सेकंड भी लेके चलते हैं। यानी इसकी बेसिकली 3 वैल्यूज़ होती हैं, 14,000 किलो जूल पर आवर और 210 किलो जूल पर मिनट, या अप्रॉक्सीमेशन में हम लोग बात करें, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर किलोवाट में अगर वैल्यू निकालनी है या किलो जूल पर सेकंड में हमें वैल्यू निकालनी है, तो वो बेसिकली 60 से डिवाइड करेंगे, 3600 से डिवाइड करेंगे इसको 14,000 को, तो हमारे जो वैल्यू आएगी लगभग 3.5 किलो जूल पर सेकंड कहें उसको, या 3.5 किलोवाट कहें, उसकी वैल्यू उतनी होगी। तो 1 TR बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो 1 TR इज बेसिकली 14,000 किलो जूल पर आवर। दिस इज बेसिकली द टन ऑफ रेफ्रिजरेशन और द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन है वो बेसिकली रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है जो प्रोड्यूस होगा आइस के मेल्ट होने पे। कब? 1000 किलोग्राम का मास होना चाहिए आइस के केस में, टेम्परेचर कितना होना चाहिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, और ड्यूरेशन 24 आवर्स में। तो इस तरीके से हम लोगों ने यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन को देखा। अब अगर बात करें रिवर्स कार्नोट साइकिल की, अगर रिवर्स कार्नोट साइकिल के बारे में बात करें तो ये बेसिकली एक बेसिक साइकिल है। इसके पहले में हम लोगों ने कार्नोट साइकिल के बारे में बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली रिवर्स कार्नोट साइकिल के बारे में। तो अगर हम लोग रेफ्रिजरेशन के बारे में बात करेंगे तो रिवर्स कार्नोट साइकिल के बारे में हम लोग प्रोसेस जो भी इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और अगर हम लोग बात करेंगे हीट इंजन के बारे में तो वहाँ पर हम लोग कार्नोट साइकिल के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग रेफ्रिजरेशन के बारे में देख रहे हैं तो यहाँ पर रिवर्स कार्नोट साइकिल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली ये एक बेसिक साइकिल है जो यूज्ड होती है रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में। इसको डिस्कशन करेंगे आगे के लेक्चर्स में। और इससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग अभी कर लेते हैं कि बेसिकली इफ़ अ मशीन वर्किंग ऑन अ रिवर्स कार्नोट साइकिल इज ड्रिवन फॉर एक्सटर्नल सोर्स इट विल वर्क और फंक्शन एज अ रेफ्रिजरेटर और हीट पम्प। ये रेफ्रिजरेटर और हीट पम्प दोनों केस में हो सकता है। यानी जो रिवर्स कार्नोट साइकिल है बेसिकली हमारे पास जो डिवाइस अवेलेबल है एक रेफ्रिजरेटर और एक हीट पम्प। तो अगर रेफ्रिजरेटर या हीट पम्प इस तरीके से वर्क करते हैं कि कार्नोट साइकिल के प्रोसेस को फुलफिल करते हैं तो उस केस में हम लोग ये कहेंगे कि जो रेफ्रिजरेटर है वो रिवर्स कार्नोट साइकिल पे वर्क कर रहा है और जो हीट पम्प है वो हमारा रिवर्स कार्नोट साइकिल पे वर्क कर रहा है। द प्रोडक्शन ऑफ सच अ मशीन हैज नॉट बीन पॉसिबल practically because the adiabatic portion of the stroke would need a high speed while during isothermal portion of the stroke a very low speed will be necessary. This variation of speed during the stroke however is not practicable. That means ये बेसिक ऐसी साइकिल है
जिसको प्रैक्टिकली में 100% अचीव नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं अचीव किया जा सकता है? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनको अचीव करने में कुछ प्रॉब्लम्स आती है। इसके बारे में डिस्कशन हम लोग आगे के लेक्चर्स में करेंगे। रिवर्स कार्नोट साइकिल के बारे में कैसे यूज़फुल होती है रेफ्रिजरेटर के केस में और हीट पंप के केस में, इसके बारे में डिस्कशन हम लोग आगे क्लासेस में करेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।